اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ارطغرل غلاموں کو قید سے رہا کرانے کے بعد وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک غلام کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اب میں اپنے گھر والوں سے ملوں گا۔ پیٹو کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کے بغیر ہم کبھی بھی ان کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا پیٹو، ہمارا سامنا ان کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ پیٹو کہتا ہے اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمکو ہمیں کبھی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ ارطغرل کہتا ہے گیدڑوں کا گول غیر متوقع ہوتا ہے لہٰذا ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا، پھر وہ سبھی کو یہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے۔ ادھر جنگل میں منہالی کا دوست کہتا ہے ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم نے یہ سونا ایک اور قافلے جو ہانلی بازار جا رہا تھا اس سے لوٹا ہے۔ پھر وہاں منہالی کا ایک اور آدمی آ کر اسے بتاتا ہے کہ اس نے کائی کے سردار ارطغرل کو دیکھا ہے، تو منہالی کہتا ہے تم نے اسے خواب میں دیکھا ہے بے وقوف، وہ تو مر چکا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں مجھے یقین ہے جس کو میں نے دیکھا ہے وہ ارطغرل ہی ہے۔ پھر منہالی فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ادھر سمکو بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ منہالی بھی ایک درخت کے پیچھے چھپ کر ارطغرل کو وہاں زندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ سمکو کو بھی وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ارطغرل سمکو کے ہاتھوں میں تھا۔ پھر وہ اپنے آدمی کو کہتا ہے کہ فوراً سے کبوتر کے ذریعے آرس کو پیغام بھیجو کہ ہم نے ارطغرل کو زندہ دیکھا ہے، وہ سمکو کے ہاتھوں میں ہے اور اب ہم اس کے تعاقب میں جا رہے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان جگانی کی کٹی ہوئی دم دیکھتی ہیں اور اس کی طرف بڑھتی ہیں۔ پھر حلیمہ سلطان اس کے پاس کھڑے ہو کر کہتی ہیں جگانی میرا دل ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا کہ ارطغرل صاحب مر چکے ہیں، میں کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اب قبیلے کے لوگ چاہے مجھے پاگل کہیں یا میرا مذاق اڑائیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور تمہاری واپسی میرے لیے امید کی کرن ہے، تمہاری واپسی سے میرے دل میں امید جاگ اٹھی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے میرے اللہ اگر اس میں تیری رضا نہ ہوتی تو میرے دل میں کبھی بھی امید نہ جگاتا، لہٰذا میرے اندر اس امید کو مزید روشن کر دے۔ ادھر جنگل میں ارطغرل اپنے غلاموں کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے، سمکو اور اس کے سپاہی بھی اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں۔ ادھر بہادر صاحب امیر سعد الدین کے ساتھ ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ امیر سعد الدین اس کو خوش آمدید کہتا ہے اور اپنے پاس بیٹھنے کو کہتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ اپنے دشمنوں کے لیے بہت ہیبت ناک ثابت ہوئے ہیں۔ بہادر صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی تک کوئی دشمن ایسا نہیں جو میرے شکنجے سے بچ نکلا ہو۔ سعد الدین کہتا ہے اعلیٰ، آپ اپنی بہادری کی وجہ سے انعام کے حقدار ہیں، اب چونکہ آپ یہاں آ چکے ہیں لہٰذا آپ کی آمد سے آپ اور آپ کا قبیلہ مزید مضبوط ہوگا۔ بہادر صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہماری ریاست کو ہر تکلیف اور پریشانی سے دور رکھے۔ سعد الدین کہتا ہے کیا آپ نے سلیحان خاتون سے اس معاملے پر کوئی بات کی؟ بہادر صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے جرگہ بلانے کی بات کی ہے لیکن وہ اس کے حق میں نہیں، مگر فکر مت کریں تمام سرداران سے ملاقات کر کے میں جلد ہی جرگہ بلا لوں گا۔ سعد الدین کہتا ہے جتنا جلدی یہ کام ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دندار صاحب ہانلی بازار بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ بازار آپ خریدیں گے، اس سے آپ کے سردار بننے کے امکانات اور بھی بڑھ جائیں گے۔ بہادر صاحب کہتے ہیں گستاخی معاف جناب، لیکن میرے پاس اتنا سونا نہیں کہ میں وہ بازار خرید سکوں۔ سعد الدین کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر کے رکھے ہیں، جس کے بعد وہ گوگتو کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سونے کے سکوں کی پیٹی لاتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے یہ سارا سونا آپ کا ہے، آپ اس سونے سے دندار صاحب کو بازار خریدنے کی پیشکش کریں گے جس کو وہ چاہ کر بھی نہیں ٹھکرا پائے گا، مزید یہ کہ میں بھی اس کو آپ کے ہاتھوں بازار بیچنے کا کہوں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ بہادر صاحب کہتے ہیں آپ بس حکم کریں جناب۔ سعد الدین کہتا ہے کہ آپ چاودار کے دونوں قبائل کو مضبوط کریں گے اور ان کے سردار ہوں گے، پھر سردار اعلیٰ بننے کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا آپ کریں گے، اور یہ کہ سلیحان خاتون اور ترگت کی شادی کو ہر حال میں روکیں گے۔ بہادر صاحب کہتے ہیں میں ساری بات سمجھ گیا ہوں جناب۔ سعد الدین کہتا ہے اعلیٰ ابھی آپ اپنے قبیلے واپس جائیں اور جتنا جلدی ہو سکے جرگہ بلائیں اور میرے پیغام کا انتظار کریں، جس کے بعد وہ وہاں سے سونے کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کھڑے ہو کر کہتا ہے تیار ہو جاؤ گوگتوک، ابھی ہم ہانلی بازار جا رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے جیسا آپ کا حکم امیر علی مقام۔ ادھر کارا جیسار قلعے میں سپاہی دروازے پر ایک خط دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے یہ خط کماندار آرس کے لیے ہے، تو وہ فوراً اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ ادھر کمرے میں آرس اپنے کمانداروں سے کہتا ہے یہ ترک قبائل ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جب فوج نیکیا سے روانہ ہوگی تو ایک بڑا آپریشن شروع ہوگا اور ہم انہیں ایک ایک کر کے تباہ کر دیں گے۔ لوکاس کہتا ہے آپ ارطغرل کو قتل کر کے پہلے ہی ترکوں کو تباہ کر چکے ہیں۔ آرس کہتا ہے ہم ان کے قبیلوں، ریوڑوں اور بازاروں کو اس طرح تباہ کر دیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ارطغرل پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اتنی دیر میں وہ دونوں سپاہی خط لے کر اندر آ جاتے ہیں۔ آرس خط کو پڑھتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ارطغرل ہمارے ہاتھوں میں ہے اور وہ زندہ ہے، ہم نے اس کے زخموں کا علاج کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے سپاہیوں کو مارنے والے تم ہی ہو، لیکن ہم نے ارطغرل کو تمہارے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا، اگر تم نے جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ کیا تو سلطان علاؤدین اور ارطغرل کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر حملہ کرنے والے تم ہی ہو، ہمارے اگلے جواب کا انتظار کرو۔ پھر آرس آگے بڑھ کر لوکاس کو نیچے گرا کر پوچھتا ہے کہ میں نے ارطغرل کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا تو وہ زندہ کیسے بچ گیا؟
इस खत के अंदर लिखा है कि वो जिंदा है। लुकास कहता है जनाब आप इत्मीनान रखें, आपने खुद उसको दफन होते हुए देखा था। आरस कहता है तो फिर ये खत किसने भेजा है? वो घर के बेदी कौन है जो मेरे दरवाजे तक आ गए और ये खत लटका दिया? लुकास कहता है जनाब वो जो भी हैं झूठ बोल रहे हैं। आरस गुस्से में पागल होते हुए कहता है किसी भी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे दरवाजे तक आन पहुंचे। जिसने भी ये हरकत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्तुगरुल जिंदा है, दफा हो जाओ यहाँ से और उस गद्दार को ढूंढो जो हमारे किले में मौजूद है। इधर जंगल में गुलाम मुसलसल भागने की वजह से थक गए होते हैं तो उनमें से कुछ आदमी कहते हैं कि हम मजीद नहीं भाग सकते। अर्तुगरुल कहता है खतरा अभी टला नहीं है, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, लिहाजा हमें भागना होगा। मिनहाली अपने आदमियों के साथ उनके ताकुब में होता है। सिमको भी अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। इधर हानली बाजार में आर्तुग भाई से एक जासूस मिलने आता है। वो पूछता है ये रास्ता किस तरफ जाता है? आर्तुग भाई कहते हैं किज़ियल यल्मा की जानब। फिर वो पूछता है जिंदगी किस में है? आर्तुग भाई कहते हैं शहादत में। फिर वो आदमी पूछता है वसलात क्या है? आर्तुग भाई कहते हैं वतन। फिर वो पूछता है वतन क्या है? तो जवाब देते हैं कि वतन सारी दुनिया है। फिर वो उनके गले मिलता है और एक खत देता है और कहता है सरदार ने आपके लिए ये खत भेजा है और खुद इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। सरदार की जानब से खत में ये पैगाम लिखा होता है कि हमें अर्तुगरुल साहब की खबर मिली है जिसका हमें बहुत अफसोस है। आपके लिए पैगाम ये है कि आप काई कबीले की देखभाल करेंगे। इसको ख़त्म ना होने दे, मैं बहुत जल्द इन ज़मीनों का दौरा करूँगा, मेरे अगले पैगाम का इंतज़ार करें। आर्तुग भाई सोचते हैं ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा जितना लग रहा है। इधर सराय में अमीर सादतदीन दुंदार साहब से पूछते हैं क्या आपने बाजार के मामले पर मशावरत की है? दुंदार साहब कहते हैं मैंने अम्मी जान, भाभी और आर्तुग भाई से बात की, लेकिन वो मुझे इस बाजार को गवर्नर आरस के हाथों नहीं बेचने देंगे। मजीद ये कि इसका फैसला जिरगा में हो जाएगा। सादतदीन इसका हाथ पकड़कर कहता है आला, एक मुसलमान एक काफिर को अपना असासा नहीं बेच सकता, लेकिन और भी रास्ते मौजूद हैं। अब बहसीयत सरदार आप इस बाजार को बेचने का इरादा कर चुके हैं। दुंदार कहता है मैं इरादा रखता हूँ, लेकिन मुझे फिक्र है बाजार को बेचने के बाद हमारा क्या होगा। सादतदीन कहता है क्या आपका यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है? मेरा मतलब ये है कि आपके अभी 2 भाई हैं। आप यहाँ अर्तुगरुल साहब के साथ मौजूद थे, लेकिन अब चूँकि वो मर चुके हैं लिहाजा सरहदी मामलात में आपको परेशानियां लाक हो सकती हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप इस बाज़ार को बेचें और इससे जो सोना हासिल हो उससे अपने कबीले को और भी ज़्यादा मुस्तहकम करें और अपने भाइयों के पास वापस चले जाएं। और हाँ, मैं एक ऐसे ख़रीदार को जानता हूँ जो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सोना देगा। मज़ीद ये कि वो है भी मुसलमान। दुंदार साहब पूछते हैं वो कौन है? सादतदीन बताता है चावदार कबीले के सरदार जानदार साहब के भाई बहादुर साहब हैं। वो अभी जंग से वापस आए हैं, लिहाजा उनके पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में माले गनीमत मौजूद है। मेरा मशवरा ये है कि आप बाज़ार को उनके हाथों बेच दें। दुंदार साहब कहते हैं आपकी बात बजा है, लेकिन आपको सबसे पहले मेरे जिरगे के लोगों को कायल करना होगा। तो सादतदीन कहता है कि सरदार आप हैं, लिहाजा उनको कायल करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। इधर काराजहिसार किले में लुकास आकर बताता है जनाब मिनहाली ने अर्तुगरुल को देखा है। आरस कहता है इस बेवकूफ़ को यकीन है कि वो अर्तुगरुल था। लुकास कहता है जनाब मिनहाली के साथ साथ उसके तमाम साथियों ने भी उसे देखा है। आरस कहता है उसने इसे कहाँ देखा था? लुकास कहता है वो गुलाम फरोज सिमकू के हाथों में था। आरस कहता है इसे फ़ौरन मेरे पास जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। फिर वो कहता है गुलाम फरोज सिमकू के हाथों में अर्तुगरुल का होना यानी मारिया ही गद्दार है। इधर कबीले में दुंदार साहब जिरगे की क़यादत करते हुए कहते हैं कि आप सभी लोगों को मालूम है बाजार के आजकल क्या हालात चल रहे हैं। ना कोई ख़रीदार और ना ही ताजर आते हैं। डाकुओं ने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है, लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नज़र मैंने बाजार को फ़रोख्त करने का इरादा किया है। फिर तमाम मौजूदीन कहते हैं अगर बाजार बिक गया तो हमारा क्या होगा जनाब, ये हमारी रोज़ी रोटी है। फिर अक्सर मौजूदीन कहते हैं दुंदार साहब का फैसला सही है, वैसे भी बाजार से कोई आमदनी नहीं हो पा रही, इसको बेच देना चाहिए। फिर आर्तुग भाई कहते हैं मौजूदीन ये बाजार हमारे शहीदों और अर्तुगरुल साहब का विरसा है, लिहाजा आप इस बात को इस तनासुर में भी सोचें। मौजूदीन कहते हैं कि आर्तुग भाई भी सही बात कर रहे हैं। हलीमा सुल्तान कहती हैं बाजार को बेचना अर्तुगरुल साहब के मकसद को नीचा दिखाने के मुतरादिफ होगा दुंदार साहब। दुंदार कहता है मैं जो भी करता हूँ अपने कबीले के फ़ायदे के लिए करता हूँ, अगर आज मेरी जगह मेरा भाई होता तो वो भी यही करता। फिर दुंदार कहता है इससे जो सोना हासिल होगा वो हमारे कबीले की निजात का बायस बनेगा। मौजूदीन में से एक आदमी कहता है हमने आपकी सारी बात सुन ली है, ये एक संगीन मसला है, लेकिन अम्मा हामा आप इस मामले के ऊपर क्या कहती हैं? तो हाइमा खातून कहती हैं ये बात सच है कि हानली बाजार हमारे शहीदों का विरसा है, लेकिन ये बात भी सच है कि अब ये बाजार हमारे लिए बोझ बन गया है, लिहाजा इस बाजार को बेच देने में ही भलाई होगी। फिर मौजूदीन में से एक आदमी पूछता है कि अगर हम बाजार को बेच देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? दुंदार साहब कहते हैं अब सबको मुतहिद करने का वक्त आ गया है। इस बाजार को बेचने के बाद मैं अपने 2 भाइयों को दुगतू और सुंगुरतकीन के साथ जाकर रहने की तजवीज़ रखता हूँ। तो मौजूदीन पूछते हैं हम अपनी ज़मीनों को छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकते हैं जिसके लिए हमने इतना ज़्यादा खून पसीना बहाया।
इधर जंगल में सिमकू अर्तुगरुल का रास्ता रोक लेता है। सिमकू कहता है तुम्हारा क्या ख्याल था अर्तुगरुल कि तुम मुझसे फरार हो जाओगे, तुम मेरे सबसे कीमती गुलाम हो, खुद को मेरे हवाले कर दो। अर्तुगरुल कहता है तुम तो क्या पूरी दुनिया भी मिलकर मुझे दोबारा गुलाम नहीं बना सकती। फिर वहाँ खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर कबीले में आर्तुग भाई कहते हैं मोअज़्ज़िन इस बाज़ार को बेचना और इन ज़मीनों से दोबारा वापस जाना जिनके लिए हमने अपना इतना ज़्यादा खून पसीना बहाया है, दरअसल अर्तुगरुल साहब के रास्ते को छोड़ने के मुतरादिफ है। फिर वो खड़े होकर कहते हैं कि इस सूरत हाल में एक और जिरगा बुलाने की ज़रूरत है। फिर आइमा खानम आगे बढ़कर कहती हैं आप समझ लें हमने ये जिरगा आज ही बुला लिया है। जिसके बाद वो मोअज़्ज़िन से पूछती हैं क्या आप में से दुंदार साहब के मुकाबले में कोई सरदारी हासिल करना चाहता है, तो कोई भी सर नहीं हिलाता। जिसके बाद आर्तुग भाई कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब के मकसद को जारी रखने के लिए मैं सरदारी का उम्मीदवार हूँ। जिसके बाद खेमे के अंदर हलचल मच जाती है। इधर जंगल में अर्तुगरुल और सिमकू की लड़ाई जारी होती है कि मिनहाली अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मिनहाली कहता है कि अर्तुगरुल को भागने मत देना। अर्तुगरुल कहता है अच्छा तो वो तुम हो जो मेरा पीछा कर रहे थे, फिर आ जाओ। जिसके बाद वहाँ खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर कबीले में आइमा खानम कहती हैं आर्तुग भाई हमारी रवायात के मुताबिक सरदार का इंतखाब हो चुका है, फिर नया जिरगा बुलाने की क्या ज़रूरत है। आर्तुग भाई कहते हैं जब नाइंसाफ़ी दरवाजे पर आ जाए तो रवायात बाहर चली जाती हैं। दुंदार साहब ने फैसला करने में अपनी ताकत का फ़ायदा उठाया है, चूँकि फ़ैसला हमारे मकसद के मुखालिफ है इसलिए ये जायज़ नहीं है। मोअज़्ज़िन में से लोग कहते हैं हम अर्तुगरुल साहब का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। आर्तुग भाई सही कह रहे हैं। फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहसो मुबासा शुरू हो जाता है। तो दुंदार साहब कहते हैं आर्तुग भाई शायद आपको कबीले के अमन अमान की कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन बहसीयत सरदार मुझे इस बात की फ़िक्र है। हमारी रवायात में मुश्किल से मुश्किल तरीन दिनों में भी जिरगा बुलाया गया है, इसलिए ये भी मुनासिब वक्त में बुला लिया जाएगा। आप तमाम लोग इसकी तैयारियाँ शुरू कर सकते हैं। आइमा खानम कहती हैं अल्लाह करे नीयत अच्छी हो और मकसद नेक हो, अल्लाह हमारे इत्तेहाद को टूटने ना दे। हलीमा सुल्तान कहती हैं ये फैसला हमारे कबीले के लिए कामयाबी लाए आर्तुग भाई। इधर हानली बाज़ार में सादती ने लीको से पूछता है कि बाज़ार के अंदर कितने ताजरों की जगह है, तो वो कहता है हतमी तादाद नहीं है, लेकिन अर्तुगरुल साहब के कवानीन और सरहद के साथ बाज़ार के मकाम में बड़ी तादाद में ताजरों और ख़रीदारों को लवाया था। सादती पूछता है अच्छा क्या सराय से एक अच्छा मुनाफा आता है। लीको कहता है जो कारोबार करना जानते हैं उनके लिए ये एक नेमत है। सादतीन कहता है आला, फिर हम इसके ऊपर भरपूर मेहनत करेंगे, तुम मुझे बाज़ार की हर खबर ला कर दोगे। आज के बाद तुम बाज़ार में मेरे लिए आंख और कान बनोगे और मैं तुम्हारी तरफ से हर किस्म की मालूमात की तवक्का करूँगा। अली को कहता है जैसा आपका हुक्म अमीर अली मुकाम। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर काराची हिसार किले में आरस मारिया के कमरे में आता है। मारिया कहती है आपने मुझे बेशुमार तोहफ़ दिए, ये इतने ज़्यादा कि मेरे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो पा रहा है। आप मुझे खुद बताएं कि इनमें से मैं कौन से पहनूं। फिर आरस आगे बढ़कर उसको इसकी गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा देता है। फिर वो पूछता है कि सिमकू ने तुम्हें मुझे क्यों दिया है मारिया, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो कहती है मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं, मैं इसकी ग़ुलाम थी, आपने मुझे आज़ाद करवाकर एक नई ज़िंदगी बख्शी है। आरस कहता है तुम अर्तुगरुल के बारे में क्या जानती हो, तो वो बताती है कि मैं इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानती। फिर वो कहती है कि सिमकू के साथ एक आदमी था जिसका नाम एंथियूस है। एंथियूस सिमकू को बताता है कि मुझे एक तुर्क मिला है जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं इसका इलाज कर लूँगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इसके बाद वो मारिया के सर पर मुक्का मारता है और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।